جب آپ ریڈی ہو تو بتائیے پلیز. ریڈی ہیں؟ آپ کی مینجمنٹ ہر جگہ پور ہے. ریڈی ہیں؟ چلیں جی بولیں. پلیز جب میں بات کر رہی ہوں انکل کائنڈلی خاموش رہیں. ان کو خاموش کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج نیب نے اپنا تیسرا پروسیکیوٹر چینج کیا ہے اور 4 ہفتوں کی مہلت مانگی ہے کورٹ سے، اور کورٹ نے 4 ہفتوں کی مہلت ان کو دی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر نیب کے پاس کوئی ثبوت ہوتا، ججز نے بار بار ان سے ثبوت مانگے. پہلے نیب کو 2 مہینے سے زیادہ کے لیے کرونا ہو گیا، اور اس کے بعد اب جب کرونا سے واپس آئے ہیں تو انہوں نے 4 ہفتے مانگ لیے ہیں پروسیکیوٹر چینج کرنے کے بہانے. ایک سادی سی بات ہے بالکل، اور وہ میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اگر میرے خلاف کوئی ثبوت ہوتا، اگر یہ مقدمہ بدنیتی پہ، انتقام پر مبنی نہ ہوتا، تو ایک ہیومن نیچر ہے کہ جب آپ کے پاس کسی چیز کا کوئی ثبوت ہوتا ہے، وہ کاغذ کا ٹکڑا آپ اٹھا کے کورٹ کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مائی لارڈ یہ ہے آپ ثبوت. جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ کو کرونا بھی ہوگا. وہ 2 مہینے پورے نیب کو کرونا ہوا تھا، 2 مہینے چلا. اس کے بعد آج آ کے انہوں نے پھر 4 ہفتے مانگ لیے. تو میں بڑے ادب سے ججز سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ. میں ہر موقع پہ، ہر پیشی پہ، ہر ہیئرنگ پہ کورٹ میں آتی ہوں، تو نیب کو اتنی ڈھیل نہیں دینی چاہیے. نیب کو چاہیے کہ ثبوت دے اگر ہے تو، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو اس کیس کو اور زیادہ لمبا کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. انصاف ہونے دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نیب نے کتنا غلط، عمران خان نے کتنا بوگس مقدمہ بنایا تھا. آج ثبوت مانگ لیے ہیں تو نیب غائب ہے. جی میڈم کیا کہیں گی گزشتہ روز جس طریقے سے ایک میڈیا ہاؤس پہ سرچ وارنٹ کے ذریعے سرچنگ کی گئی محسن بیگ صاحب کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کے ہاتھوں سے گیم نکل چکی ہے، بہت مخاط کا شکار ہو چکی ہے؟ دیکھیں، کل جو ہوا اور جو میں پچھلے کچھ دن سے دیکھ رہی ہوں، اس سے مجھے مشرف کے آخری ایام یاد آتے ہیں کہ جب مشرف کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ ان کی حکومت ختم ہونے والی ہے اور اقتدار ختم ہونے والا ہے. تو وہ دن مجھے آج یاد آ رہا تھا جب ججز کو، بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بالوں سے پکڑ کر انہوں نے اشارہ دستور پہ گھسیٹا تھا. 60 ججز کو پین کی ایک سٹروک کے ساتھ گھر بھیج دیا، ان کو بچوں سمیت ان کے گھروں میں قید کر دیا. تو جب میں عمران خان صاحب کی حالت دیکھتی ہوں تو مجھے مشرف کا وہ دور یاد آتا ہے کہ محسن بیگ صاحب جب آپ کے ساتھ تھے، بقول ان کے انہوں نے 1 ارب روپے کا فنڈ آپ کو اکٹھا کر کے دیا، آپ کی سیاسی معاملات میں مدد کی، تب تو وہ بالکل اچھے تھے. جب انہوں نے آپ پر تنقید شروع کی تو آپ میں اتنا سا بھی ظرف نہیں تھا کہ آپ وہ تنقید برداشت کر سکتے. آپ نے ایک ریاستی ادارے FIA کو استعمال کیا، اور ایک کورٹ نے اب کل کہہ بھی دیا ہے کہ وہ ناجائز طریقے سے آپ نے اس کو استعمال کیا. آپ نے ان کے گھروں کی، شہریوں کے گھروں کی دیواریں پھلاندنی شروع کر دیں، ان کے بچوں کو مارنا شروع کر دیا. تو مجھے تو آپ کی ذہنی حالت پہ عمران خان صاحب ترس آتا ہے کہ آپ، مجھے تو یہ کہنا کہ آپ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، مجھے لگتا ہے آپ ذہنی طور پہ بالکل مفلوج ہو چکے ہیں. وہی محسن بیگ صاحب جب آپ کے ساتھ تھے ہمارے پہ تنقید کیا کرتے تھے. ہمارے پہ آپ کی پوری جماعت نے، آپ کے ساتھ جو اس وقت صحافی حضرات تھے، انہوں نے ہم پر بے جا تنقید بھی کی. ہم نے تو کسی کو FIA کے ذریعے اٹھوا کر اور مار نہیں پڑوائی اور جیل میں نہیں ڈالا. اور آپ کوئی آسمان سے اتری ہوئی کوئی مخلوق ہیں یا آپ کوئی ایسی شخصیت ہے جن پہ تنقید نہیں کی جا سکتی؟ اور ہاں، آپ کی جو اہلیہ ہیں وہ ہمارے لیے احترام کے قابل ہیں، لیکن جو سٹینڈرڈ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ کے لیے سیٹ کیا جائے، وہی سٹینڈرڈ
मरहूमा कलसूम नवाज शरीफ के लिए होना चाहिए था, जब वो लंदन के एक क्लिनिक में, हॉस्पिटल में रेस्पिरेटर पे बेहोश पड़ी थी और ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। पीटीआई के लोगों ने डॉक्टर्स का भेस बदल कर और आईसीयू के ऊपर धावा बोला, सिर्फ उनकी तस्वीरें लेने के लिए, क्योंकि उस वक्त ये बात बार बार कही जाती थी टीवी पर और पीटीआई के लोग कहते थे, सहाफ़ी हजरात से कहलवाई जाती थी कि वो तो बेगम नवाज शरीफ को तो कुछ भी नहीं है, वो तो रोज़ वहाँ इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। और ये बात मैं आज पहली बार मीडिया के सामने कर रही हूँ कि जब हम अपनी वालिदा की अयादत के लिए लंदन में मौजूद थे, आज पहली मर्तबा मैं कौम के सामने ये बात बता रही हूँ। मैं अपने साथ होने वाले किसी जुल्म और ज़्यादती का जिक्र इसलिए नहीं करना चाहती कि वो मैंने एक बड़े मकसद के लिए, कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए वो चीज़ बर्दाश्त की, इसलिए मुझे उसका अफसोस नहीं है। लेकिन आज मैं कौम से ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब अपनी वालिदा की इयादत के लिए मैं लंदन वाले अपार्टमेंट से निकल कर हॉस्पिटल जा रही होती थी या हॉस्पिटल से वापस आ रही होती थी, तो नीचे 3-4 पीटीआई के वर्कर्स गाली देकर मुझे बुलाते थे, दूर से गाली देते थे। और उसके बाद जब मेरा बेटा जुनेद गुजरता था, उसकी वालिदा को गाली निकाला करते थे। और मैं आज मीडिया से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप ये मनाजिर, आज ये बात जब मेरी ऑन एयर जा रही है, तो जब आप इसको चलाएं तो आप काइंडली वो मनाजिर दिखाएं जब पीटीआई के लोगों ने, मेरी माँ डेथ बेड पर पड़ी थी तो पीटीआई के लोगों ने हमारे घरों पर हमला किया, लंदन के हमारे अपार्टमेंट पे हमला किया, मेरे बच्चों पर हमला किया, मेरे जो नेफ्यू है हुसैन नवाज शरीफ का बेटा, उस पर हमला किया। और उसके बाद कौन सी ऐसी मुखालिफ की बेटी, बहू, माँ, बहन आपके इंतकाम से बची है? वो स्टैंडर्ड जो आप अपनी वाइफ के लिए सेट करते हैं वो फिर आप दूसरों पे भी अप्लाई करें। मुझे आपने बेगुनाह होते हुए आपने मुझे डेथ सेल में डाला, किसी की बेटी को आपने उसके वालिद के सामने गिरफ्तार किया, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये भी मनाजिर ज़रूर चलाइएगा, गो के हैं तो बहुत शर्मनाक मनाजिर। लेकिन मैं जब गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन चला रही थी, आज़ाद जम्मू कश्मीर में कैंपेन चला रही थी, तो आपके पास मेरी कैंपेन की जवाब नहीं था, आपके पास मेरी पॉलिटिकल बातों का जवाब नहीं था। तो आपके वज़रा ने वहाँ खड़े होकर कैमरा पे ऑन रिकॉर्ड वो इखलाक से गिरी हुई तकरीरें की कि आज भी वो पूरी दुनिया में जब जब सुनी जाएगी, हर इज्जतदार का जो सर है वो शर्म से झुक जाएगा। एक सेकेंड। तो मैं मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आज वो तकारीर ज़रूर चलाई जाएं जिसमें आपके वज़रा ने मुझ पर ज़ाती अटैक्स किए, पर्सनल अटैक्स किए। उस वक्त तो इमरान खान साहब उनको शाबाश दिया करते थे, उस वक्त तो तालियां बजाया करते थे, उस वक्त तो बड़े खुश होते थे। मैं भी किसी की बेटी हूँ। और इस तरह जब आपने जवेरिया शहबाज को वो वालिद का हाथ पकड़कर जब कोर्ट्स में जा रही थी, तो जो आपने लोगों की बेटियों के साथ किया हुआ है, आसमा शराजी के साथ आपने जो किया, आपके लोगों ने जो गरीदा फारूकी साहिबा के साथ किया, जो सना बच्चा साहिबा के साथ किया, वो कौम अभी भूली नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड आप अपने लिए सेट करते हैं वही स्टैंडर्ड बराए मेहरबानी आप दूसरों के लिए भी सेट करें, तो आपकी बात में कोई वजन होगा। और तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला रखें। और एक और बात, ये मेरे सामने मरियम औरंगजेब खड़ी हैं, मुझे अच्छी तरह याद है। मरियम, वो कब का वाकया? जब मैं गई थी मालम जब्बा। ये मालम जब्बा गई थी, इन्होंने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी थी, उसके जवाब में चीफ मिनिस्टर केपी के, जो इमरान खान का चीफ मिनिस्टर है, उसने इंतहाई काबिल मजम्मत अल्फाज में, ये भी खातून है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, इन पर जो हमले किए थे, काइंडली आज मीडिया को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी चलाइए। और जाहिर है कि जब आप इस किस्म की बात करेंगे तो मैं ये ज़रूर आपको कहूँगी कि एक ही झटके में आपने कल जब 12 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, और उस 12 रुपये बढ़ने की वजह से जिस तरह से चीनी की कीमत बढ़ गई,
घी की कीमत बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट के किरायों की कीमत बढ़ गई, तो उस वक्त जब कोई शख्स, कोई शहरी, कोई पाकिस्तानी जब अपनी मोटरसाइकिल में, अपनी गाड़ी में, अपने बस में जब कोई पेट्रोल डलवाने जाता है गैस स्टेशन पे, तो वो आपको जिस तरह बद्दुआएं देता है, वो अब मैं जिक्र नहीं करना चाहती कि वो किन अलकाबात में लोग अवाम आपको याद कर रही है, तो क्या उनके ऊपर भी आप एफआईए को भेज के उनके ऊपर हमले कराएंगे? तो मैं 12 रुपये लीटर जो पेट्रोल बढ़ा है, इंतहाई शर्म का मुकाम है कि आप देखें। और जब वो चूल्हे के आगे सामने जब एक खातून खाना खड़ी होती है, जब उसके पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, सब्जी के लिए पैसे नहीं है, आटा के लिए पैसे नहीं है, चीनी के लिए पैसे नहीं है, वो जिन इल्काबात में आज आपको याद कर रही हैं, तो तनकीद बर्दाश्त करने का, अगर गलत काम किया है तो तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला रखें। आपके मुखालिफिन ने आपकी गलत बातों के ऊपर, आपके गलत इल्ज़ामात पर, झूठे लग़्व इल्ज़ामात पर तनकीद बर्दाश्त की, बल्कि ना सिर्फ तनकीद बर्दाश्त की, आपका जुल्म बर्दाश्त किया। तो थोड़ा सा हौसला आप भी रखें। लोगों के पास सरकारी गाड़ियां नहीं हैं, लोगों के पास सरकारी पेट्रोल की फैसिलिटी नहीं है। आपकी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ हैं, जो फर्राटे भरती हुई आवाम का मुंह चढ़ाती हुई जाती हैं, तो आवाम को सरकारी पेट्रोल नहीं मिलता, आवाम को ये सहूलत मैसर नहीं है। और दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है, बनी गाला से आप प्राइम मिनिस्टर हाउस देख ले, 15 मिनट का रास्ता है। कि दुनिया का पहला और वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक आवाम के खर्चे पे हेलीकॉप्टर में आता है। उस वक्त आप जब हेलीकॉप्टरों में, और जब आप सरकारी खर्चे पे, पेट्रोल पे, जब आप बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ में, जिनके पेट्रोल के साथ आपका कोई लेना देना सफ़र करेंगे, आपको क्या पता कि एक मोटरसाइकिल वाला जब पेट्रोल भरवाने जाता है गैस स्टेशन पे, उस पर क्या गुजरती है? आपको क्या पता कि आपका किचन तो कोई और चलाता है? आपको तो ये पता नहीं है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ती है, महंगाई हो जाती है। मैम ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि अब वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा रशिया है। एक मैं और बात करना चाहती हूँ, देखिए एक मिनट। इमरान खान साहब की जो जराइम की फहरिस्त है वो बहुत तवील है, और मैं ये समझती हूँ कि महंगाई, लाकानूनियत, दहशतगर्दी जो वापस आ रही है, सिर्फ यही उनके गुनाह नहीं है कि लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं, नौकरियाँ चली गई लोगों की। उनकी जराइम की फहरिस्त में सरे फहरिस्त जो चीज़ आती है वो है कि आपने सरकारी खर्च के ऊपर, आवाम की खून पसीने की कमाई पर, आवाम की टैक्स पेयर के ऊपर आपने 4 साल सवाए इंतकाम लेने के और कुछ नहीं किया। है इसका कोई जवाब आपके पास? मैंने माना कि आपके पास अहलियत नहीं है, मैंने माना कि आपके पास काबिलियत नहीं है, लेकिन काश आपके पास एक एहसास रखने वाला दिल भी होता, तो आपको ये एहसास होता कि आपने अवाम के खून पसीने की कमाई, आपने अपने ज़ाती स्कोर सेटल करने में, हसद की जिस आग में आप जल रहे थे अपने मुखालिफिन की वजह से, उसको बुझाने के लिए आपने कौम का हार्ड अर्नड मनी, कौम की जो खून पसीने की कमाई थी वो आपने इस्तेमाल की और झोंकी। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपने अपने ज़ाती स्कोर सेटल करने के लिए, आपने अपने ज़ाती इंतकाम की तस्कीन की खातिर आपने FIA, NAB जैसे इदारों को अपनी सियासी लड़ाई में झोंका। इसका जवाब है कोई आपके पास? और फिर सबसे बड़ा गुनाह आपका ये है कि भले आप जाली थे, भले आप वोट चोरी करके आए थे, लेकिन आखिर आप वजीर आज़म की कुर्सी पर तो बैठे ना। भले आप धब्बा लगा गए उसको, लेकिन बैठे। तो जो 3-4 साल आपको आवाम की खिदमत में जुट जाना चाहिए था, उनके एहसास में जुट जाना चाहिए था, आपने वो 3-4 साल सिर्फ और सिर्फ इंतकाम पे अपनी तवज्जो मरकूज रखी। इस बात का सवाल आपसे दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा। आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब, आप किसी रियासत के नवाब नहीं हैं, आप किसी रियासत के बादशाह नहीं है, ये अवाम आपकी रियाया नहीं है
کہ آپ اس کا خون پسینے کی کمائی جہاں چاہیں آپ صرف کریں, ایک ایک پائی کا حساب آپ کو دینا ہوگا. لندن بھاگنے کی اجازت نہیں ملے گی, اب دینا ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ دینا پڑے گا. جی سب کا لیں گے. حسن آپ کر لیں. دورہ رشیا ہوگا یا نہیں ہوگا, یا انحصار یہ معاملہ اپوزیشن کے ہاتھ میں ہے یا نہیں؟ اگر آپ لوگ پہلے طریقے عدم اتحاد ٹیبل کر دیتے ہیں تو پھر ایسی صورتحال میں وزیر اعظم رشیا نہیں جائیں گے, آپ اجازت دے رہی ہیں نہیں؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس کے ہی فی الحال کسی کمرے میں بند کر دینا چاہیے. وہ جہاں جاتے ہیں, جس ملک میں جاتے ہیں, پاکستان کا تماشا بنا کے آتے ہیں. ابھی آپ چائنا میں دیکھا آپ نے ان کو, چائنا میں سوائے اس امپریشن کی کہ وہ پیسہ مانگنے گئے تھے, کیا امپریشن آپ کو نظر آیا؟ اور پیسہ بھی نہیں ملا, بلکہ وہاں پر بلوچستان میں جب آپ کے جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں وہ شہید ہو رہے تھے, تو آپ وہاں پر بیٹھ کر اولمپکس کا میچ دیکھ رہے تھے. میں کہتی ہوں کہ ضرور دیکھتے, لیکن تھوڑا سا بھی درد دل ہوتا تو وہ پکچرز آپ ریلیز نہ کرتے. وہاں آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں, وہاں آپ اولمپکس کا میچ دیکھ رہے ہیں. کہ کوئی آپ کا وزراء میں سے بھی اتنا سمجھ اور عقل والا نہیں ہے یا درد والا نہیں ہے جو آپ کو یہ بتا سکے کہ یہ بیڈ آپٹکس ہے, یہ مت کریں. تو وہ جس ملک میں جاتے ہیں دوسرے ملک کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں, اور جو بنے بنائے پاکستان کے تعلقات ہیں وہ بھی بگاڑ کے آ جاتے ہیں. اس حکومت میں جتنا فورن ریلیشنز کا یا جو ہمارے دوسروں ملکوں کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز جو پاکستان کے تھے دوسرے ملکوں کے ساتھ, جو مطلب ایج اولڈ جو اچھے تعلقات تھے, انہوں نے ان کو بھی برباد کر دیا. صرف معیشت برباد نہیں کی, پاکستان آج اکیلا اور تنہا کھڑا ہے, اور آپ کے دوست ممالک بھی آپ کو منہ لگانے کو تیار نہیں. اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو روکنا چاہیے. اگر یہ کہیں جا بھی رہے ہوں تو ان کو ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہیے کہ پاکستان اب مزید بربادی کا متحمل نہیں ہو سکتا. کائنڈلی آپ یہ دورے مت کریں. جی آصف. جی آپ کیا پوچھا؟ سوری. ٹیبل نہیں کری طریقے عدم اتحاد نہیں, جانے سے پہلے 24 کو جا رہے ہیں, وہ 24 سے 26 کا دورہ ہے. ایک سیکنڈ. سینٹ کے خلاف لڑائی کی تھی, سینٹ چیئرمین کے خلاف اپوزیشن بکھر گئی تھی. کیا اس بار مستقل ہے ووٹ آف کانفیڈنس لائے گئے یا نہیں لائے گئے؟ اسی میں ایک ایڈ کر لیں, جہانگیر ترین کی اگر آپ کو ہیلپ لینی پڑتی ہے تو کیا مسلم لیگ نون ان سے ہاتھ ملا لے گی؟ دیکھیں, میں تمام اتحادی جماعتوں کو اور میں تمام ان ایم این ایز کو اور ایم پی ایز کو جو اس وقت آلموسٹ فارورڈ بلاک بنا کے بیٹھے ہیں, میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اس وقت عوام اور اقتدار کے درمیان کی جنگ ہے. جو عوام کا حال اس حکومت نے, اس عمران خان نے کیا ہے, ملک کی جو تباہی اس نے کی ہے, اور مزید تباہی جو ایک ایک دن جو حکومت کا گزرتا ہے اس میں ایک ایک سال پاکستان پیچھے جا رہا ہے. تو اب یہ آپ پہ فرض بن گیا ہے کہ عوام کی آواز پہ لبیک کہیں, ورنہ میں اتحادیوں سمیت سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ عمران خان کا ساتھ دے اور وہ حلقوں میں ووٹ مانگنے جا سکے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب کو اس وقت عوام کی آواز پہ لبیک کہنا چاہیے, چاہے وہ اتحادی جماعتیں ہوں یا کوئی اور ہو. جی آصف. دیکھیے, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. کوئی قانون بدنام زمانہ نہیں ہوتا سوائے اس قانون کے جو ڈکٹیٹرشپ بناتی ہے, اس کا استعمال اس کو بدنام کرتا ہے. اگر آپ نے ایک قانون کو اس کے اصل استعمال کی بجائے آپ نے صحافیوں سے بدلہ لینے پہ استعمال کیا, سچ بولنے پہ استعمال کیا, انتقام لینے پہ استعمال کیا, پولیٹیکل سکور سیٹل کرنے میں استعمال کیا, تو پھر تو وہ بدنام زمانہ ہے. لیکن اگر آپ نے اس کا صحیح استعمال کیا, جس اسپرٹ کے لیے وہ قانون بنایا جاتا ہے یا بنایا گیا تھا اس اسپرٹ کے لیے استعمال کیا, تو قانون تو خراب نہیں ہوتا, قانون کا استعمال خراب ہوتا ہے, غلط استعمال خراب ہوتا ہے. اور میری ہمدردی ہے, دیکھیں میں
एज अ फ्रेटर्निटी मैं मीडिया की रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि मीडिया वॉच डॉग होता है. मीडिया की तनकीद कभी बेजा भी होती है, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मीडिया की तनकीद की वजह से इंसान को अपनी कोर्स की दुरुस्तगी का मौका मिलता है, अपनी गलतियाँ सुधारने का मौका मिलता है, इंसाइट मिलती है चीज़ों में. तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, चाहे वो हामिद मीर साहब हों या वो कोई भी हो, मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क जो सहाफ़ियों के एतबार से है वो पाकिस्तान है. कौन सा ऐसा जुल्म है जो सहाफ़ियों के साथ नहीं उठाया गया? उनके बच्चों को यतीम किया गया, उनको सरेआम गोलियां मारी गईं, उनको सरेआम ब्रॉड डे लाइट में उठाकर डालों में डालकर ये ले गए. कहीं FIA, कभी नैब, उनके सारे चीज़ें खोल के रख दी, उनके ख़ानदानों को सफ़र करना पड़ा. तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत ही, आप अपनी गलतियाँ नहीं देखते, अपनी गलतियों की निशानदही करने वालों की तकलीफ़ आपको होती है. तो ज़रा हौसला रखें तनकीद का, या फिर सियासत छोड़ दें. मतीउल्लाह शहबाज शरीफ बतौर सदर मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बहुत बड़ा सियासी जुआ खेल रहे हैं. अगर वो नाकाम होते हैं तो क्या वो अपने पार्टी ओहदे से दस्तबरदार हो जाएंगे? और दूसरा सवाल, क्या आप और मुस्लिम लीग नून मौजूदा आर्मी चीफ की दोबारा एक्सटेंशन के हक में हैं? देखें, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अगर तहरीक अदम एतमाद पे के लिए अग्री किया है, तो मैं पहले भी जो मैंने मैसेज इत्तेहादियों को दिया है हुकूमत के, जो मैंने मैसेजेस डिसग्रंटल्ड जो भी उनके MNAs हैं, MPAs हैं, उनको दिया है, वही चीज़ मुस्लिम लीग नून पे भी लागू होती है. अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं, अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं, सहाफ़ियों की तरफ देख रहे हैं कि कोई उनके लिए आवाज़ उठाए और इस जो इतनी बर्बादी और तबाही उनके ऊपर आई हुई है इमरान खान की सूरत में, उससे उनको निजात दिलाए. तो मैं ये समझती हूँ कि अगर अपोजिशन इस वक्त एक्ट नहीं करेगी तो अपोजिशन भी बराबर की, लोग उसको बराबर का जिम्मेदार ठहराएंगे. तो हमने अपने अवाम के पास वापस जाना है. इलेक्शन में हमने उन्हीं के पास वापस जाना है. तो लोग ये पूछेंगे कि जब हम तकलीफ से गुजरे थे तो आप कहाँ थे. बाकी मैं ये समझती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि कामयाबी होगी, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त अपनी लास्ट लेग्स पे हैं. तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए. जी आप जब एक मिनट, जब उसकी कोई जिक्र होगा, कबल अज वक्त है ये सवाल, तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगी. अभी ऐसा कुछ आया नहीं हमारे सामने. मैंने बिल्कुल इल्तवा नहीं लिया. मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जब मेरे वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, उनको कोरोना हो गया तो उन्होंने उनकी कमर में तकलीफ़ हो गई, वो बैठ नहीं सकते थे. तो उनके लिए इस्लामाबाद और लाहौर का सफ़र जब मुश्किल हो गया तो फिर मैंने इनको इंगेज किया, इरफान कादिर साहब को. मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मेरा लॉयर बीमार है और वो 2-2.5 महीने अब नहीं आएगा तो मुझे 2-2.5 महीने का इल्तवा चाहिए. मैंने नया काउंसिल इंगेज किया और उनको तैयारी के लिए मिनिमम जो वक्त दरकार था वो उनको दिया गया. उसके अलावा मुझे जो 561A की एप्लीकेशन थी जो मैंने दाखिल कराई, वो मुझे जमा करानी थी. उसके लिए जितना वक्त दरकार था वो मैंने डिले के लिए नहीं लिया, वो मैंने इसलिए लिया कि ताकि मुकदमा आगे चले और अच्छे तरीके से चले. कयूम सदीकी साहब, और मुझे कोई डिले की ज़रूरत नहीं है भाई, इसलिए कि मेरा केस सिक्का बंद है माशाल्लाह, एयर टाइट है. मुझे तो बल्कि जल्द इंसाफ की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ. कयूम सदीकी साहब, मैं इस चीज़ पे जवाब आपको दे चुकी हूँ. यहाँ बात की कि जो डिक्टेटरशिप के बनाए गए कानून के हवाले से बात की आपने, नैब जिसकी चक्की में आप आज लोग पीस रहे हैं, ये डिक्टेटरशिप का बनाया हुआ कानून था. लेकिन आप जब इक़्तिदार में थे तो आपने इसमें तब्दील क्यों नहीं की? अब कर देंगे इंशाल्लाह. चले जी. आखिरी सवाल. वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से क्या अपोजिशन जमातें अंपायर के न्यूट्रल होने का इंतजार कर रही हैं या समझते हैं अंपायर न्यूट्रल होता है? रास्ता बना. देखें, मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया था. मेरा नहीं ख्याल कि उनसे ज़्यादा एलोक्वेंट कोई हैं इस वक्त. उनसे जब ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा अंपायर होता ही वो है जो न्यूट्रल हो. तो बस यही जवाब है मेरा. न्यूज़ 1 टीवी को
बंद किया जा रहा है, केबल ऑपरेटर्स को गैर कानूनी तौर पर अहकामात जारी किए गए हैं कि इस टीवी को चलने आपने नहीं देना, पैमरा से भी नोटिस दिलवाया है। और अच्छा सवाल किया। आप किस चैनल का मुंह बंद करेंगे, किस चैनल को नोटिस देंगे? अगर आपको बंद ही करवाना है तो इमरान खान साहब को अपना और अपने वज़रा का मुंह बंद कराना चाहिए। शुक्रिया।